रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुक्तरान मिल्लत इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब है। और जब कोई सलाम करता है ना तो इसमें अल्लाह से आपके लिए दुआ होती है कि अल्लाह आपकी सलामती करे। तो आप भी जवाब में हमारे लिए भी दुआ करेंगे ना। तो जब भी कोई सलाम करे तो बुलंद आवाज़ से जवाब दिया करें। फिर से मैं करती हूँ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुक्तरानी मिल्लत इस्लामिया, आइए इस महफिल मिलाद को शुरू करने से पहले हम अपना आगाज़ हम्द बारी ताला से करते हैं। मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि आज बज़्म मुस्तफ़ा है सबको आना चाहिए, कि आज बज़्म मुस्तफ़ा है सबको आना चाहिए, आशिकाने मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाना चाहिए, कि आशिकाने मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाना चाहिए। और आ जाओ महफिल में कोई काम नहीं लूँगी, कि आ जाओ महफिल में कोई काम नहीं लूँगी, अरे खुद ही पिलाऊंगी जाम कोई दाम नहीं लूँगी। कि सरकार की महफिल से कतराते हैं वो लोग, कि सरकार की महफिल से कतराते हैं वो लोग, आप खुद समझ जाइए मैं नाम नहीं लूँगी। मेरे मौला मेरे मौला 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 मेरे मौला 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 मेरे मौला। काबे की रौनक काबे का मंजर, काबे की रौनक काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। एक बार मोहब्बत के साथ कहते सुभान अल्लाह। हैरत से खुद को कभी देखती हूँ और देखती हूँ कभी मैं हरम को, हैरत से खुद को कभी देखती हूँ और देखती हूँ कभी मैं हरम को। लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर,
منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے، کہ اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے کہ جس کے قلب میں عشق حضور ہوتا ہے. اے عاشقان سہے انبیاء حدیث سنو، اے عاشقان سہے انبیاء حدیث سنو کہ حدیث سننے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے، کہ حدیث سننے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے. اور گلشن خلد کی بہاروں میں باغ جنت کا پھول لائی ہوں، گلشن خلد کی بہاروں میں باغ جنت کا پھول لائی ہوں. عاشقوں بھر لو دامن دل کو میں حدیث رسول لائی ہوں، عاشقوں بھر لو دامن دل کو میں حدیث رسول لائی ہوں. دختران ملت اسلامیہ، دیکھیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آج ہم سرکار کی محفل میں بیٹھے ہیں نا، تو اس محفل کا ادب بھی کیا کریں، کیونکہ یہ نہ سوچیں کہ یہ کوئی معمولی انسان یا کسی معمولی سی ہستی کی یہ محفل ہے. نہیں، یہ اس کی محفل ہے نا جس کے صدقے میں ہم اور آپ ہی نہیں اس دنیا کو بنایا گیا. سوچیں اتنی مقدس ہستی کی محفل میں ہم بیٹھے ہیں، جسے بیٹھنے پر بھی نیکیاں ملتی ہیں، سننے پر بھی نیکیاں ملتی ہیں، بولنے پر بھی نیکیاں ملتی ہیں. لیکن آج کل دیکھا جاتا ہے نا، اور یہ آج ہی ہمیں کافی دنوں سے کافی سالوں سے یہ رواج چلا آیا کہ آقا کی محفل میں لوگ آتے تو ہیں، بیٹھتے تو ہیں، لیکن شامل نہیں ہوتے ہیں. اب آپ سوچیں گی نا کہ آئے بھی بیٹھے بھی لیکن شامل نہیں ہوئے، وہ کیسے؟ تو وہ ایسے کہ ہمارا شریر یہاں ہوتا ہے اور دل دماغ آتما کہیں اور ہوتی ہے. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جو صدق دل سے، سچے دل سے، من کے ساتھ اس محفل میں آ کر بیٹھے. دیکھیے ہماری اور آپ کی یہ حیثیت نہیں تھی، ہماری اوقات نہیں تھی کہ ہم یہاں پر آ سکیں یا ہمیں یہاں بلایا جائے یا ہم یہاں بیٹھنے کے قابل بنے. نہیں، ہم ایسے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اتنی مقدس جگہ پر بیٹھے. اب بیٹھے تو ہیں تو کس کے بلانے پہ بیٹھے ہیں؟ کسی بندے کے بلانے سے، کسی انسان کے بلانے سے نہیں. یہ جن کی محفل ہے نا، انہوں نے خود ہمیں بلایا ہے، انہوں نے ہی چاہا ہے تب اس محفل میں ہم آئے ہیں، ورنہ ہماری تو ایسے اعمال ہی نہیں ہے کہ اتنی مقدس اتنی نیک جگہ پر ہم آ سکے، بیٹھ سکے. لیکن سوچنے کی بات ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے، اپنے امتی سے کتنی محبت کرتے کہ ہم اتنی نافرمانیاں کرتے، اتنی گستاخیاں کرتے، اتنی ناشکری کرتے، لیکن پھر بھی اتنی رحمتوں والی محفل میں ہمیں بیٹھنے کا موقع ملا، جہاں پہ فرشتے کثرت سے آتے، جہاں پہ نیکیاں بے شمار ملتی ہیں جس کی کوئی گنتی تعداد نہیں ہے. اتنی مقدس جگہ پہ ہم گنہگار بیٹھے. ہم تو ایسی مخلوق ہے نا کہ ہم سے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے ہر وقت ہم سے گناہ ہوتا ہے، اور ہوتا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ کرتے ہیں نا ہم لوگ گناہ، چلتے بھی گناہ ہوتا ہے، بیٹھتے بھی گناہ ہوتا ہے، لوگوں سے بات کرتے بھی ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب کون سی بات ایسی میری زبان سے نکلی جو ہمیں کفر کی حد تک لے کے جائے. ایسے ہمارے اعمال ہیں. سوچیں ہمارے ایسے اعمال کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں بیٹھ سکتے. یہ تو سرکار کا ہم پہ کرم ہے، ہمارے نبی کا ہم پہ کرم ہے کہ اپنے صدقے میں، اپنی محبت میں ہمیں یہاں پہ بلایا، یہاں بیٹھایا. کیونکہ اگر ہم یہاں 2 گھنٹہ بیٹھے نا تو ایمان کی حالت پہ بیٹھیں گے. جتنی دیر یہاں بیٹھے اتنی دیر ہمارا ایمان سلامت ہے. کیونکہ جائے نا کون سی بات ایسی نکل جائے، کون سی حرکت ایسی ہو جائے جس سے انسان کا ایمان برباد ہو جائے، یہ کوئی نہیں جانتا. لیکن پھر بھی سوچئے اتنی مقدس پاک جگہ پر آ کر بھی ہم اس کا ادب احترام نہیں کرتی ہیں. اب کیسے کرتی ہیں؟ بس بیٹھتی ہیں، لیکن صرف بیٹھنا مراد نہیں ہے، وہ تو ہمارے اندر تھا ہی نہیں کہ ہم یہاں آ کر بیٹھے. وہ تو نبی نے چاہا، آقا نے چاہا تو ہم یہاں پر آئے ہیں. کیونکہ شاعر کہتا ہے
कि सरकार दो आलम की महफिल को सरकार ही सजाते हैं, सरकार दो आलम की महफिल को सरकार ही सजाते हैं, और महफिल में वही आते हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं, और महफिल में वही आते हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। तो अदब से आओ, अदब से बैठो, अदब से आओ, अदब से बैठो, अदब करो, ये अदब की जान है। इस दुनिया में और कुछ हासिल नहीं होने वाला, कुछ मिलने वाला नहीं है। कितना भी किसी के पीछे भागिए, रोइए, गाइए, उसका दामन पकड़िए, लेकिन कोई भी आपका बेड़ा पार नहीं कर सकता। अगर कर सकते हैं तो कौन है? वो अल्लाह और नबी की जात है, जो अपने बेड़े को पार लगा सकती है, अपनी डूबती नैया को तिरा सकती है। वो कौन है? वो हमारे अल्लाह है, उनके महबूब हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तभी तो कहते हैं ना कि अदब से आओ, अदब से बैठो, अदब करो, ये अदब की जान है। क्योंकि ये ऐसी वैसी महफिल नहीं, ये मिलाद मुस्तफा है। ये ऐसी वैसी महफिल नहीं, ये मिलाद मुस्तफा है। कहते ना मुबारक महफिल। मुबारक क्यों कहा गया? बरकतों वाली महफिल। बरकतों वाली महफिल क्यों कहा गया? रहमतों वाली महफिल क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर ना रहमतों का नुज़ूल होता है। किसके सदक़े में? अपने नबी के सदक़े में। क्योंकि अल्लाह ने आज हमें, आपको, इस जमीन को, आसमान को, फरिश्तों को, चरिंद परिंद, शजर हजर, लौह कलम, ये सब क्यों बनाया? क्यों बनाया? क्योंकि उन्होंने अपने नबी की मोहब्बत में बनाया, क्योंकि उनको अपने नबी को इस दुनिया में भेजना था। बहुत लोग कहते हैं, सोचते हैं ना कि अरे नबी तो बहुत देर में आए, सबसे आखिरी में आए, उससे पहले बहुत से नबी भी आए, उससे पहले से ये दुनिया आई, तो उनके सदक़े में कैसे बने? सोचने वाले कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन सोचें, अभी इस दुनिया को भी नहीं बनाया गया था, अभी मखलूकों को भी नहीं बनाया गया था, अभी और नबियों को भी नहीं भेजा गया था। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नूर को बनाया था, नूर को पैदा किया था, और उनके नूर से ही इस दुनिया को बनाया, उनके नूर से ही आसमान को बनाया, उनके नूर से ही चरिंद परिंद शजर हजर कुल कायनात किससे बना? उनके नूर से बना। आज हम भी बने तो अपने नबी के सदके में ही बने। तो ये ना कोई ख्याल करे कि अरे नबी तो हमारे प्यारे आका तो सबसे आखिरी में आए। नहीं, भले से वो आखिरी में आए, लेकिन वो अभी इस दुनिया में आए भी नहीं थे, उससे पहले उन्हें पैदा किया गया, उससे पहले उन्हें बनाया गया। लेकिन उनको सबसे आखिरी में क्यों भेजा गया? क्योंकि उन पर आकर नबूवत का सिलसिला खत्म था, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और आज उसी नबी की हम उम्मत है जो सबसे अफजल। कहते हैं इससे पहले बहुत से नबी आए और हर नबी पे आजाब भी आए। ऐसा भी था पहले कि जब नबी थे ना, दौर ऐसा था ना, कोई झूठ बोलता तो उसका मुंह टेढ़ा हो जाता, कोई गुनाह वाली चीज, हराम चीज देखता तो वो अंधा हो जाता, नाबीना हो जाता। तरह तरह के आजाब आए उन पे। लेकिन आज हम पे कोई आजाब नाजिल होता है? झूठ भी बोलते, चुगली भी करते, गीबत भी करते, हराम वाली जगहों पे भी जाते, हराम कारी भी करते, लेकिन क्या मजाल है किसी पे कोई आजाब नाजिल हुआ? नहीं हुआ। तो है ना हम सबसे अफजल, सबसे बेस्ट अपने प्यारे आका के सदके में। और सबसे ज्यादा नाफरमानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही कर रही है, सबसे ज्यादा नाफरमानी। सोचे हमारा हाल क्या है। आज उसी नबी की महफिल में हम बैठे हैं, और तो चीजें छोड़ दीजिए, फर्ज छोड़ दीजिए, सुन्नत छोड़ दीजिए, अपनी जिंदगी को सही तरीके से गुजारना छोड़ दीजिए। आज जिस जगह पर हम बैठे हैं ना, उस जगह का भी अदब नहीं करते। कैसे नहीं करते? इसका भी मैं रीजन बताऊं। बयान होता रहता है, नबी की नाम पढ़ी जाती है, कहते हैं ना कि नबी से मोहब्बत करते हैं। वो कौन सी मोहब्बत है जो नबी का नाम सुन रही है, लेकिन कोई नई इस्लामी बहन आ जाए तो पूरे लोगों की तवज्जो उधर चली जाती है। ये कैसी मोहब्बत है?
कहते हैं जब इंसान किसी से सच्चे दिल से, सिर्फ दिल से मोहब्बत करता है ना, तो उसके सिवा फिर कुछ नजर नहीं आता। आता है कोई नजर नहीं आता। कोई अच्छा हो, बुरा हो, खराब हो, सही हो, गलत हो, लेकिन हम जिससे मोहब्बत करते हैं हमें वही सबसे बेस्ट लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? उसके अलावा पूरी दुनिया इंसान घूम के चला आए, लेकिन कोई उसे पसंद नहीं आता। आता है कोई पसंद? नहीं आता। तो सोचो हम अपने नबी से कैसे मोहब्बत कर रहे हैं कि जरा से लोगों से हमारी तवज्जो हट जाती है। कोई नए लोग आ जाते हैं तो पूरे लोग का जहन दिमाग सब उधर चला जाता है। और देखिए एक बात का ख्याल रखा करें कि जब भी किसी नेक महफिल में जाए, अल्लाह व रसूल की महफिल में जाए, तो सबसे पहले अपने बैठने के तरीके को देखा करें। आप लोग इस तरीके से बैठे ना, जगह को छोड़ कर पीछे की, कि जो बाद में इस्लामी बहन आए तो उन्हें जगह ना माननी पड़े। इसीलिए कहा जाता है ना, इस जगह में जब आए बैठे ना, तो सबसे पहले आगे की जगह को भरा करें। देखिए कहते हैं ना कि एक तो ये भी सहूलियत रहती है कि बाद में शोर शराबा नहीं होता है, और इससे एक और भी फायदा है कि जो सरकार की महफिल में पहल करता है बैठने में ना, उसकी रहमतें बरकतें उससे ज्यादा मिलती है, उससे और ज्यादा ही मिलती है। कितने लोग तो आगे बैठने के लिए सोचते हैं, अगर किसी काम की वजह से जो आका से सच्ची मोहब्बत करती हैं और किसी काम की वजह से थोड़ा लेट हो जाता है आने में ना, तो सोचती है कि काश हम भी आगे बैठे होते। तो इस बात का ख्याल रखा करें। तो मैं क्या बता रही थी कि ये सरकार की महफिल है और यहाँ पर अदब के साथ आए, इस तरीके से आए ना कि ये सोचे कि मेरे पाँव भी सरकार की महफिल में इतनी तेज ना चले जिससे नबी की शान में गुस्ताखी हो जाए। ये सच्चे आशिक की निशानी है, आशिका की निशानी है कि जब वो किसी नबी की महफिल में जाते हैं ना, तो दबे कदमों जाते हैं, आहिस्ता चलते हैं कि कहीं मेरे ये कदम नबी की शान में गुस्ताखी ना कर दे, कहीं मेरी हरकत नबी की शान में गुस्ताखी ना कर दे, कहीं मेरी नजर नबी की शान में गुस्ताखी ना कर दे। तो इस बात का ख्याल रखा करें, क्योंकि जिस जगह पर हम बैठे ना, उसे जन्नत की क्यारी कहा जाता है। सोचे अल्लाह इतना रहीम और करीम है ना कि अपने नबी के सदके, अपने नबी की मोहब्बत में हमें दुनिया में भी जन्नत की क्यारी अता फरमाता है। सोचे तो जो नबी से मोहब्बत करेगा, जो नबी की याद में मरेगा, वरना से जन्नत नहीं देगा, जरूर देगा। जब उनकी मोहब्बत में इस महफिल को सजाया, तो यहाँ पे बैठने का मौका मिला, जन्नत की क्यारी में आने का मौका मिला, तो अपनी नबी की नाम पर उनकी वजह से अगर इस दुनिया से चले जाए तो हमें जन्नत तो जरूर मिलेगी ना। और ये यकीन है कि जो सच्चा पक्का मोमिन मुसलमान है, जन्नत ही उसका ठिकाना है, जहन्नम नहीं है। तो अपने नबी की मोहब्बत में बैठे और सुबहान अल्लाह की सदाएं भी लगाया है। देखिए सुबहान अल्लाह की फजीलत तो मैंने पढ़ी है, और इतनी प्यारी प्यारी फजीलतें हैं, इतनी बेशुमार फजीलतें हैं सुबहान अल्लाह की। पहले तो एक जगह लिखा है कि ये सुबहान अल्लाह, ये जो जिक्र है ना, ये अल्लाह का सबसे पसंदीदा जिक्र है। सोचिए अल्लाह अपने नबी से कितनी मोहब्बत करता है, उसे पसंद करता है, और सुबहान अल्लाह को भी पसंद करता है। और जो अपने नबी की याद में, अपने नबी की मोहब्बत में सुबहान अल्लाह कह दे, तो सोचिए अल्लाह कितना खुश होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह का ये पसंदीदा कलाम है, जिक्र है सुबहान अल्लाह। देखिए इस दुनिया में बहुत से नबी आए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम आए, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए, हजरत यहया ज़करिया अलैहिस्सलाम आए, लेकिन सबसे अफजल कौन आए? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा नहीं कि अल्लाह उनसे मोहब्बत नहीं करता था, उनसे भी मोहब्बत करता था, तभी तो नबी बना के दुनिया में भेजा, लेकिन उनको भी अपने नबी के सदके में ही दुनिया में नबी बनाकर भेजा। सोचें, आइए मैं सुबहान अल्लाह की फजीलत पे एक रिवायत आपको बताऊं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब वो अपने जमाने में थे ना, तो जिस तख्त पे वो बैठते थे, उनका तख्त बहुत ही खूबसूरत था। उसकी खूबसूरती की कोई मिसाल नहीं है कि कितनी मिसाल दी जाए। यहाँ तक कि वो जो तख्त था ना, फरिश्तों को भी पसंद था। तो एक बार क्या होता ना, वो फरिश्ते उस तख्त को आसमान
پر لے کر جا رہے تھے خوشی میں اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر. اور جب وہ آسمان پہ جاتے ہیں نا تو زمین پر ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے, اس تخت کو دیکھتا ہے, اس تخت کو دیکھتا ہے, اور دیکھتا ہی رہتا ہے نا تو اس کے دل سے آواز آتی ہے, دل سے نکلتا ہے. کہتے ہیں جب کسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے نا, کوئی چیز پسند آ جاتی ہے تو دل سے اس کی تعریف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس کے زبان سے نکل جاتا ہے سبحان اللہ. کیا نکل جاتا ہے؟ سبحان اللہ. وہیں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ او بندے جانتا ہے تو یہ تخت کس کا ہے؟ کہتے نہیں یہ تو نہیں جانتا, لیکن جس کا بھی بڑا خوبصورت تخت ہے, جس کو دیکھ کر میری زبان سے سبحان اللہ نکل گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تخت ہے نا یہ میرا ہے, اس دور کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہے. دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاؤں. تو اس بندہ کہتا ہے کہ ہاں ضرور بتائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میرا تخت ہے نا بھلے سے خوبصورت ہے, لیکن ایک دن فنا ہو جائے گا, باقی نہیں رہے گا, سب ختم ہو جائے گا, کیونکہ یہ دنیا ہی فانی ہے, یہ دنیا ہی فانی ہے, تو دنیا کی چیزیں کیوں نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تخت ایک دن ختم ہو جائے گا, لیکن میں تمہیں ایک فضیلت بتاؤں, اس کو دیکھ کر جو تم نے سبحان اللہ کہا ہے نا تو اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قیامت تک دیتا رہے گا. قیامت تک دیتا رہے گا. سوچیں حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو نبی کے صدقے میں بنایا گیا تھا, ان کی تخت کو دیکھ کر جو سبحان اللہ کہہ دے تو اللہ اس کا بدلہ اسے قیامت تک دے گا. تو جو اپنے نبی کی محبت میں سبحان اللہ کہے اس کا بدلہ اللہ نہیں دے گا, ضرور دے گا. تو سوچیں آج اس جگہ اتنی مقدس جگہ پر بیٹھے ہیں جہاں ہمیں سبحان اللہ کہنے کا موقع ملتا ہے. ویسے تو ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ آپ گھروں پہ بھی رہیے, درود کلمہ استغفار اللہ کا ذکر کرتی رہیے, لیکن عورتوں کو ٹائم نہیں ملتا ہے. سب کی زبان پہ ہوتا ہے کہ وقت ہی نہیں ملتا, ٹائم ہی نہیں ملتا. آج وقت ملا, ماحول ملا, دور ملا, تو کون سا سبحان اللہ کہہ رہے ہیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جن سے بار بار کہنا نہیں پڑتا ہے کہ آپ سبحان اللہ کہیں, وہ اپنی مرضی سے کہتے ہیں, کہ زیادہ تر لوگوں سے کہنا پڑتا ہے سبحان اللہ. ہے کہ نہیں ہے؟ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس محفل کا ادب کر لے, خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس محفل کو یہ غنیمت جان کر بیٹھ کر اللہ میں بھلے ہی کتنی گنہگار ہوں, لیکن مجھے اس قابل بنایا کہ میں محبوب کی محفل میں بیٹھی ہوں, اور اللہ نے چاہا تو آج اسی محفل کے صدقے اور اسی محفل کی برکت سے ہم سب کی مغفرت بھی ہو جائے گی, کیونکہ سب کے اعمال نامے ایسے ہیں جو اس محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے. ذرا سی بات پہ ناشکری کرنا, ذرا سی بات پہ واویلا مچانا, ذرا سی بات پہ نافرمانی کرنا, یہ سب کس کے اندر ہے؟ ہمارے اندر ہے. لیکن پھر بھی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو اس محفل کو غنیمت جانے, کیونکہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں. ابھی اس محفل سے نکلے, اب باہر جا ٹھوکر لگ جائے, ہماری موت ہو جائے, کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا. تو نیک کام کر کے مرے تو اس سے اچھی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. ارے اس محفل کے صدقے میں اگر ہم یہاں سے نکلے اور موت آ جائے نا تو یہ بھی ہمارے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہے, بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ نبی کی محفل میں آئے تھے اور نبی کی نعت سن کر, نبی کا ذکر سن کر ہم نے اس دنیا سے پرواز کر لیا. ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس موقع کو, اس وقت کو بھی آخری وقت سمجھ کر گزارے کہ پتہ نہیں باہر مل کر موت کھڑے ہو, زندگی یہی تک ہو, کوئی نہیں جانتا. جانتا ہے کوئی؟ تو اس محفل کا ادب کرے, اور جو بھی نعت اچھی لگے, جو بھی ذکر اچھا لگے, جو بھی تعریف اچھی لگے نبی کی, وہ سبحان اللہ کی صدائیں لگائیں اور نیت کر کے بیٹھے کہ انشاءاللہ آج اس محفل میں میں بیٹھی ہوں نا تو اپنے گناہوں کی تو توبہ کروں گی مولا, لیکن یہ بھی ہدایت دے دے کہ آج اس محفل میں جو کچھ بتایا جائے اس پہ عمل بھی کر سکے, کیونکہ نیک محفل سجانے اور آنے کا مقصد یہی ہوتا ہے. دیکھیے اللہ جسے پسند کر لے, نبی جسے پسند کر لے, اسی کو اپنی محفلوں کو بھی بلاتے. چاہے نا تو کسی کو بھی بلا سکتے ہیں, لیکن ہمیں بلایا. کیوں بلایا؟ اللہ ہم سے چاہتا ہے نا کہ ہم نیکیاں کریں, اللہ ہم سے نیکیاں کروانا چاہتا ہے, لیکن ہم کرتے نہیں ہیں.
अपने नबी की महफिल के सदके, अपने नबी की महफिल के सदके में भी सोच ले। तो आज हम यहाँ आए हैं तो कुछ सोच समझ के अल्लाह और उनके नबी ने हमें अपनी महफिल में बुलाया है कि हम नेकियां कर सकें। तो आज इस महफिल में बैठ कर ये हमसे नहीं, अल्लाह और अपने नबी से वादा करें और ये दुआ भी करें कि या अल्लाह ऐसी जिंदगी गुजारने की तौफीक दे दे मौला जैसे जिंदगी को तू पसंद फरमाता है, क्योंकि हम ऐसी जिंदगी गुजार नहीं रहे थे अभी तक। इंशाअल्लाह सिद्क़ दिल से दुआ करें तो हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल के सदके में, अपने महबूब के सदके में ही हमें ऐसी जिंदगी अता फरमाए, है कि नहीं है? तो इस महफिल का अदब व एहतराम करें, क्योंकि कौन सी नेकी हमें हमारी मग़फ़िरत करा दे, कौन सी नेकी हमें जन्नत तक पहुंचा दे, ये कोई नहीं जानता। अरे अल्लाह तो इतना रहीम करीम है कि हम उसके महबूब की महफिल का अदब बचा रहे ना, तो अल्लाह उसके सदके में भी हमें मग़फ़िरत फरमा सकता है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि मौला आज इस महफिल में जो कुछ भी बताया जाए, जो कुछ भी पढ़ा जाए, मौला उस पे हम सबको भी अमल करने की तौफीक अता फरमा, उसके बाद आप सबको भी तौफीक अता फरमाए मौला। एक बार पूरी महफिल कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठाकर कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए शायर कहता है ना कि चिराग जलाकर हवाओं को छोड़ाई हूँ, चिराग जलाकर हवाओं में छोड़ाई हूँ, मैं अपनी हर मुश्किल को मुश्किल कुशा पर छोड़ाई हूँ, और मैं अपने घर से पढ़कर निकली हूँ अतल कुर्सी, मैं अपने घर से पढ़कर निकली हूँ अतल कुर्सी, मैं अपने घर की हिफाजत खुदा पर छोड़ाई हूँ, मैं अपने घर की हिफाजत खुदा पर छोड़ाई हूँ, और बागी जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, कि बागी जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, अरे फूल रहमत के चढ़ेंगे हम उठाते जाएंगे, और खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, कि खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे, कि या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। और मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, कि मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए, और रखा मेरे नबी ने जब दुनिया में कदम, और रखा मेरे नबी ने जब दुनिया में कदम, तो पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, तो पत्थर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। और ये मेरा बड़ा पसंदीदा शेर है कि नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है, कि नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है, और नबी के नाम के सदके मेरा हर काम होता है। अरे मैं बीमारी मोहम्मद हूँ, मुझे दवे की क्या जरूरत, कि मैं बीमारी मोहम्मद हूँ, मुझे दवे की क्या जरूरत। अरे दुरूद पाक पढ़ने से वो चाहते हैं कि पहुंच जाए आज ही तैबा, वो चाहते हैं पहुंच जाए आज ही तैबा, जो खुश नसीब हरम में कयाम करते हैं, मदीने जाए तो वापस न लौट के आए, मदीने जाए तो वापस लौट के न आए, यही दुआ है जो सुबह शाम करते हैं। कसम खुदा की खुदा उनसे प्यार करता है, कसम खुदा की खुदा उनसे प्यार करता है, जो जिक्र सरवरे आलम का मदाम करता है। और खुदा का जिक्र रसूल करीम का मिलाद, और खुदा का जिक्र रसूल करीम का मिलाद हम अपने घर में बसद एहतराम करते हैं। और दिखाई देता है, और दिखाई देता है रंगे रसूल जिनमें, और दिखाई देता है रंगे रसूल जिसमें, निदा हम उनको अदब से सलाम करते हैं। गली गली सज गई, गली गली सज गई, शहर शहर सज गया, गली गली सज गई, शहर शहर सज गया, आए नबी प्यारे नबी मेरा भी घर सज गया। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, हाँ मुस्तफा से प्यार है, दिल से ये इकरार है, मुस्तफा से प्यार है, दिल से ये इकरार है,
میلاد نبی کرنے کو تیار ہے. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، دنیا میں بھی جہاں رہے، دنیا میں جہاں بھی رہے، آباد رہیں گے، آباد رہیں گے. جو آمینہ کے لال کا میلاد کریں گے، جو آمینہ کے لال کا میلاد کریں گے، میلاد کریں گے. تھوڑا اچھا لگتا ہے کورس میں آپ لوگ کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا، مزہ بھی آئے گا. دنیا میں جہاں بھی رہے، دنیا میں جہاں بھی رہے، آباد رہیں گے، آباد رہیں گے. جو آمینہ کے لال کا میلاد کریں گے، جو آمینہ کے لال کا میلاد کریں گے، میلاد کریں گے، میلاد کریں گے. جھنڈے لگاؤ، گھر کو سجاؤ، جھنڈے لگاؤ، گھر کو سجاؤ، کر کے چراغ، کر کے چراغ، خوشیاں مناؤ. سرکار آئے مرحبا، دیدار آئے مرحبا، سرکار آئے مرحبا، دیدار آئے مرحبا. غمخوار آئے میرے لجپال آئے، غمخوار آئے میرے لجپال آئے. کیا نور ہے، کیا خوشبو ہے، اجالوں کا سما ہے. کیا نور ہے، کیا خوشبو ہے، اجالوں کا مزہ ہے. سرکار کے پرچم سے سجا سارا جہاں ہے. چرچے بھی سجے، دل بھی سجے، گھر بھی سجے ہیں. چرچے بھی سجے، گھر بھی سجے، دل بھی سجے ہیں. جو سج نہ سکا یہ تو بتا گھر وہ کہاں ہے. گلی گلی سج گئی، شہر شہر سج گیا. آئے نبی پیارے نبی، میرا بھی گھر سج گیا. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. ہاں مصطفیٰ سے پیار ہے، دل سے یہ اقرار ہے. مصطفیٰ سے پیار ہے، دل سے یہ اقرار ہے. ہر کوئی میلاد نبی کرنے کو تیار ہے، ہر کوئی میلاد نبی کرنے کو تیار ہے. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، دنیا میں جہاں بھی رہے، دنیا میں جہاں بھی رہے، آباد رہیں گے، آباد رہیں گے. جو آمینہ کے لال کا میلاد کریں گے، جو آمینہ کے لال کا میلاد کریں گے، میلاد کریں گے، میلاد کریں گے، میلاد کریں گے. یہ دل نبی کے ذکر سے شرمشار بہت ہے، یہ دل نبی کے ذکر سے شرمشار بہت ہے. میلاد کی محفل سے مجھے پیار بہت ہے، میلاد کی محفل سے مجھے پیار بہت ہے. وہ ختم رسول ان سے محبت ہے ضروری، وہ ختم رسول ان سے محبت ہے ضروری. بخشش کے لیے چاہت سرکار بہت ہے. گلی گلی سج گئی، شہر شہر سج گیا. آئے نبی پیارے نبی، میرا بھی گھر سج گیا. آئے نبی پیارے نبی، میرا بھی گھر سج گیا. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مصطفیٰ سے پیار ہے، دل سے یہ اقرار ہے. مصطفیٰ سے پیار ہے، دل سے یہ اقرار ہے. ہر کوئی میلاد نبی کرنے کو تیار ہے. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. دنیا میں جہاں بھی رہے، دنیا میں جہاں
जो आमिना के लाल का मिलाद करेंगे, जो आमिना के लाल का मिलाद करेंगे, मिलाद करेंगे। घर घर नबी का जिक्र है, घर घर में चरागा, घर घर में नबी का जिक्र है, घर घर में चरागा। हम जश्न मिलादत पे दिलो जान से कुर्बान, हम जश्न मिलादत पे दिलो जान से कुर्बान। तुम हिंद पाक में नहीं दुनिया में देख लो, तुम हिंद पाक में नहीं दुनिया में देख लो। जज्बे से मनाते हैं ये सदियों से मुसलमान, जज्बे से मनाते हैं ये सदियों से मुसलमान। गली गली सज गई, शहर शहर सज गया, आए नबी प्यारे नबी मेरा भी दिल बस गया। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, मिलाद मुस्तफ़ा मनाना क्या है? सुन्नत है, लेकिन सुन्नत के चक्कर में फ़र्ज नहीं छोड़ना चाहिए और नमाज कज़ा हो जाएगी। तो इसलिए इस बात का भी ख्याल रखें। मस्जिदों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, खाते और पकाते, ऐसा देवबंदी को पीटना जरूरी है। मस्जिदों में जाते हैं, खाते और पकाते हैं, ऐसा देवबंदी को पीटना जरूरी है। मोहम्मद की चौखट पे, मोहम्मद की चौखट पे निकल जाए दम, नहीं है मुझे कोई मरने के गम, नहीं है मुझे कोई मरने के गम। अल्लाह से अल्लाह, अल्लाह से अल्लाह, बेस बिस्मिल्लाह, तेज तलवार उठा, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पढ़े दरूद पाक, अल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नखरे इबादत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए एक माँ के लिए नज़्म पढ़ ली जाए फरमाइश पे, उसके बाद इस महफिल का इख्तिताम कर दिया जाएगा। एक बार माँ की मोहब्बत में पूरी महफिल का सुभान अल्लाह। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मैं हूँ बच्चा तेरा, है ये मेरी दुआ, तुझ पे रब की इनायत रहे, मेरी माँ तो सलामत रहे, मेरी माँ तो सलामत रहे, मेरी माँ तो सलामत रहे, सबकी माँ तो सलामत रहे, मेरी माँ तो सलामत रहे। बल मोहब्बत के साथ कहते सुभान अल्लाह। कि तू है क्या क्या मैं कैसे बताऊं तुझे, पीठ पे लेके हज मैं कराऊं तुझे, तू है क्या क्या मैं कैसे बताऊं तुझे, पीठ पे लेके हज मैं कराऊं तुझे, हक अदा मुझसे तेरा
सबकी माँ तो सलामत रहे, मेरी माँ तो सलामत रहे। कि मैं गलती छुपा लेती थी बाप से, कोई करता शिकायत मेरी आप से। मेरी गलती छुपा लेती थी बाप से, कोई करता शिकायत मेरी आप से। डांट ना डांट करे प्यार करना तेरा, याद है मुझे बाहों में भरना तेरा। मेरे आंसू तेरी आँख से बहते हैं, मैं सदा खुश रहूं ये दुआ करते हैं। बन के घर में तू रहे मत रहे, मेरी माँ तो सलामत रहे, मेरी माँ तो सलामत रहे। सबकी माँ तो सलामत रहे, मेरी माँ तो सलामत रहे। बड़ा मोहब्बत के साथ कहते सुभान अल्लाह। एक बार अपने अपने वालिद के लिए कहते सुभान अल्लाह। कि मेरे प्यारे से वाल को भी या खुदा, जिंदगी भर मेरी उनका साया बना। उनका चेहरा चमकता दमकता रहे, उनका सर जब झुके तेरे आगे झुके। उम्र भर उनको कोई मर्ज ना छुए, हर कदम पे उन्हें इतनी इज्जत मिले। उन पे मौला की रहमत रहे, मेरे वालिद सलामत रहे, मेरे वालिद सलामत रहे। सबके वालिद सलामत रहे, मेरे वालिद सलामत रहे। ये आखिरी शेर हम लाज़िम फरमाइएगा एक बार मोहब्बत के साथ कहते सुभान अल्लाह। कि ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे भाइयों, अपने माँ बाप को तुम सदा खुश रखो। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे भाइयों, अपने माँ बाप को तुम सदा खुश रखो। ऊंची आवाज में उनसे मत बोलिए, डांट भी दे अगर उफ भी मत कीजिए। माँ के खिदमत से इन्हें सावली हो गए, और दुआ से वो जन्नती हो गए। माँ की फरहान चाहत रहे, मेरी माँ तो सलामत रहे, मेरी माँ तो सलामत रहे। सबकी माँ तो सलामत रहे, मेरी माँ तो सलामत रहे। सबकी माँ तो सलामत रहे। कि सर पे हाथ फेरे तो हिम्मत मिल जाए, कि सर पे हाथ फेरे तो हिम्मत मिल जाए। माँ एक बार मुस्कुरा दे तो जन्नत मिल जाए, कि माँ एक बार मुस्कुरा दे तो जन्नत मिल जाए। ऐ खुदा तूने भेजा है रहमत का जाम, कि ऐ खुदा तूने भेजा है रहमत का जाम। उनके हाथों जिनका मोहम्मद है नाम, रूह निकलती रहे दिल ये कहता रहे, कि रूह निकलती रहे दिल ये कहता रहे। क्या मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सलाम के लिए खड़े हो जाइए। चलो चलो घर पे। ऐ दीन
शाही अल्लाह ने नबूवत तुम पर खत्म कर दी, तुम पर खत्म कर दी। दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए। दुआ के अदा कीजिए। उसके दुआ देखिए ऐसे हाथ रख के दुआ मांगते हैं, उसके दुपट्टे के अंदर से मांगते हैं। तो दुआ ऐसे नहीं मांगी जाती है। ये जो हमारे हथेली है ना, ये ऐसे आसमान की तरफ हो, निगाहें नीची हो और इतनी आँख अपना बुलंद हाथ होना चाहिए। और सब लोग आमीन बोलेगा। अब दुआ में निगाह इधर उधर करने से निगाह कमजोर हो जाएगा। सब लोग आमीन बोलिए, आवाज़ नहीं ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन व अहलहु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना अज़ाबल क़ब्रि वक़िना अज़ाबल हुश्रि वक़िना अज़ाबल लैलि वक़िना अज़ाबद दारैन वक़िना अज़ाबल फ़ुस्क़ात वक़िना अज़ाबल मीज़ान वक़िना अज़ाबल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। मौला खैर बतानी बहक़ शाह जिलानी, तेरे लुत्फ़ व करम से मौला दूर हो जाए परेशानी। ऐ दुखों को बचाने वाले, बेकसों की दस्तगीरी करने वाले, हम गुनहगारों की मग़फ़िरत फरमाने वाले मौला, हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दे मौला। या अल्लाह तुझे हम सब से जो भी गुनाह जानबूझकर अनजाने में, अंधेरे में, उजाले में, कसदन सबन कबायर सगायर, या अल्लाह तुझे छुप छुप कर भी जो हम सब से गुनाह हो गए मौला, उन सब गुनाहों के लिए हम सबको माफ़ फरमा दे मौला। या अल्लाह तुझे हम सब मोमिन मोमिनात को इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा मौला। या अल्लाह तुझे हम सबको हर नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा मौला, और हर गुनाह से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा मौला। या अल्लाह तुझे ये ज़िंदगी मौला तेरी इबादत में गुज़रे मौला, तेरी इबादत पर ख़त्म हो मौला। या अल्लाह तुझे हम सब का इबादतों में दिल लगा दे मौला, और गुनाहों से हम सब की जान छुड़ा दे मौला। या अल्लाह तुझे हमने और हमारे जो भी पढ़ा मौला, हम सब के पढ़ने में जो भी गुनाह गलतियाँ खताएं लर्जिशें हो गई मौला, अपने प्यारे हबीब के सदक़े वसीले से माफ़ फरमा दीजिए मौला। या अल्लाह तुझे जिसके घर में महफ़िल मिलाद है मौला, उनके घर में रोज़ी में रोज़गार में रिज़्क़ में खैर बरकत अता करना मौला। या अल्लाह तुझे उनको दिखे जाए तमन्ना और मकसदों में कामयाबी और कामरानी अता फरमा दे मौला। या अल्लाह तुझे उनके घर में रोज़ी में खैर बरकत अता फरमाना मौला। या अल्लाह तुझे हम पर जितनी भी हाज़िरीन हाज़िर है मौला, हम सब की हाज़िरी को कबूल मक़बूल फरमा ले मौला, और हम सब की हाज़िरी को कबूल मक़बूल फरमा ले मौला, और हम सब के दिल की जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा दे मौला। जिसके हक़ में जो बेहतर है मौला, तो उसको अता फरमा दे मौला। या अल्लाह तुझे हम सब जानते हैं मौला कि हम सब बहुत गुनाहगार हैं मौला, लेकिन तेरी रहमत के आगे मौला हमारे गुनाह कुछ भी नहीं मौला। तो अपने रहमत कामला से हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे मौला, और हम सब के दिल की जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा दे मौला। या अल्लाह तुझे हम सबको सच्चा और पक्का आशिक़ रसूल बना दे मौला। या अल्लाह तुझे हम सब के दिलों में अपने और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमा दे मौला। या अल्लाह तुझे हम सबको सच्चा और
पाँच वक्त की नमाजें वक्त पर अदा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल जैसे रोज़े तू पसंद फरमाता है मौला वैसे रोज़े हम सबको रखने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबको रोज़ाना कुरान शरीफ की तिलावत करने की भी तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबको सुन्नतों पर अमल करने वाला और सुन्नतों को जिंदा करने वाला बना दे मौला। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल हर मोमिन मोमिनात की हर परेशानी को हर बला को दूर फरमा दे मौला। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सब मोमिन मोमिनात को काफिरों और दुश्मनों के करीब से महफूज रखना मौला। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल फिलिस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा दे मौला। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल हर मोमिन मोमिनात के रोज़ी में रोज़गार में रिज़्क़ में खैर बरकत अता करना मौला। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो बेरोज़गार है मौला उनको हलाल आसान रोज़ी अता फरमा दे मौला। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो बेवतन है मौला उनको अपना वतन वाला बना दे मौला। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो बे औलाद है मौला उन्हें नेक सालिह औलाद से नवाज़ दे मौला। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल जिन जिन लोगों ने हमसे दुआ के लिए दरख्वास्त किया मौला अल्लाह खास कर मौला और जिनको नहीं जानते मौला अल्लाह उनकी भी मौला तू गोदों को या अल्लाह पाक नवाज दे मौला नेक सालिह औलाद से। या अल्लाह जो भी बे औलाद है मौला उनको नेक सालिह औलाद से नवाज दे मौला। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो बीमारी हाल है मौला जो यहाँ बीमार आए हैं जो अपने घरों पर बीमार को छोड़कर आए हैं जो हॉस्पिटलों में मौला तो सबको शिफाए कामिला अजला नाफिया अता फरमा दे मौला। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो कर्ज में डूबे हैं मौला उनके कर्ज से उतर जाए मौला। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो बेजा मुकदमे में फंसे मौला अल्लाह उनको से रिहाई अता फरमा दे मौला। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो ऐसे बलाओं में मुब्तला है मौला अल्लाह उनको से निजात दे दे मौला। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो माँ बाप अपने बच्चे और बच्चों के रिश्ते के लिए परेशान है मौला उन्हें नेक रिश्ता अता फरमा दे मौला। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल जिनके रिश्ते हो चुके हैं मौला अल्लाह उनके घरों को चैन अमन और सुकून का गहवारा बना दे मौला। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल बिछड़े हुए को मिला दे मौला रूठे हुए को मना दे मौला। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सब के अखलाक को अच्छा कर दे मौला। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सब के वालिदैन के और सारी उम्मत की मौला बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दे मौला। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सब औरतों और लड़कियों को पर्दे में रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे मौला। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल हासिदों के हसद से बचाना मौला बदनज़रों की बदनज़री से बचाना मौला जादू टोने आसेब से हम सब की हिफाजत करना मौला ज़मीनी आसमानी बलाओं से भी हम सब को बचाना मौला। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो औलाद अपने माँ बाप के नाफरमान है मौला उनको फरमाबरदार बेटी बेटा बना दे मौला अपने माँ बाप की आँखों का नूर बना दे मौला। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल जिनके घर में महफिलें मिला दे मौला अल्लाह उनको बच्चे की कामयाबी और कामरानी अता फरमा दे मौला। या अल्लाह सबके दिल की जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा दे मौला। या अल्लाह हम सब मोमिन मोमिनात को क़यामत के दिन रुसवाई से बचाना मौला। या अल्लाह हम सब के अमाल नामे दाहिने हाथ में अता करना मौला। या अल्लाह हम सब मोमिन मोमिनात को मरते वक्त कलमा नसीब करना मौला। या अल्लाह हम सबको कलमे वाली मदीने वाली मौत नसीब फरमाना मौला। जन्नतुल बक़ी हम सबका मदफन बने मौला। या अल्लाह हम सबको कुल सिरात पर भी साबित कदम रखना मौला। या अल्लाह हम सब मोमिन मोमिनात को अज़ाब क़ब्र से निजात देना मौला अज़ाब क़ब्र से निजात देना मौला। या अल्लाह जो लोग इस दुनिया से चले गए मौला उनकी क़ब्रों में रोशनी अता फरमा मौला उनकी रूहों को ठंडा रख मौला उनको दर्जात अता करना मौला। या अल्लाह उनकी क़ब्रों में जन्नत की खिड़की खोल दे मौला। या अल्लाह हम सब मोमिन मोमिनात को अज़ाब क़ब्र से निजात देना मौला। या अल्लाह हम सब मोमिन मोमिनात को जहन्नम की आग से बचाना मौला। या अल्लाह हम सब मोमिन मोमिनात को जन्नतुल फ़िरदौस अता करना मौला। या अल्लाह हम सब मोमिन मोमिनात ईमान पर जिए मौला और ईमान पर ही हम सब का या अल्लाह मैंने जो भी दुआ मांगी मौला और जो भी दुआ मांगने से रह गई मौला जो हम सब के हक़ में बेहतर है मौला तो उसको अता फरमा दे मौला। जो हम सब के हक़ में बेहतर नहीं मौला उसका ख्याल भी हमारे दिल से निकाल दे मौला। मैं क्यों कहूँ कि मुझको ये अता हो वो अता हो मौला कुछ ऐसा अता कर कि हम सब का भला हो मिट्टी ना हो बर्बाद पसे मर्ग इलाही जब खाक उड़े हम सब की तो मदीने की हवा हो। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मदन मा हुआ अहलु जब में वापसी हो या अल्लाह सामने हो रोज़े रसूलुल्लाह दीद होती रहे दम निकलता रहे लब पे हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि